So hello everyone once again. This is the video lecture based on engineering survey. In this case we are going to discuss obstacle in chaining. So before that, first of all we identify those activity which is useful for chaining process. The first activity is identify your station and locate the station by ranging it. So A and B are your main station which is located by this ranging rod, and small c and small d are intermediate stations, and we locate this also by ranging rod. The second step for ranging for chaining is your ranging process, in which you are going to sight these stations and just mark the points. The third step, which is your final step, is to measure the distance between these intermediate point and main station with the help of chaining. तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया चेनिंग फॉर दिस प्रोसेस. For this process we have two persons. The first one is leader, which have starting handle of the chain and number of arrows in his hand. The second person who guide the leader in the direction of the station is known as follower. It has another handle of chain, which you can say that the end point of chain, and it also collect number of arrows placed by leader. Okay, so suppose you have 20-meter chain and the length of 20-meter chain is up to this point. So at that point a leader will place one arrow. Okay, now leader move from this point to another point and place arrow. When leader at that point, जब लीडर इस वाले पॉइंट पे होगा, पॉइंट नंबर 2 पे, तो जो फॉलोअर होगा वो कहाँ पे आ जाएगा? फॉलोअर 1 पॉइंट पे आ जाएगा. ठीक है, और फॉलोअर क्या करेगा? यहाँ से इस एरो को, जो ये वाला एरो है, इसको कलेक्ट कर लेगा. तो यही इसीलिए फॉलोअर क्या करता है? कलेक्शन करता है एरोज को जो कि लीडर ने प्लेस किया हुआ है. ठीक है, इस तरीके से ये आप आगे मूव करते हुए चलेंगे. ओके, तो देखा जाए तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 एरो. ये 8 एरो किसने कलेक्ट करे? ये 8 एरो फॉलोअर ने कलेक्ट करे. उसके बाद लास्ट जो एरो होगा वो एरो पुट किया जाएगा इस बी पॉइंट पे. जब लीडर इसको पास कर देगा बी पॉइंट को, क्योंकि अब इसके आगे कुछ नहीं है, तो चेन का एंड, तब फिर जो फॉलोअर होगा वो क्या करेगा? ये जो लास्ट वाला एरो है इसको भी कलेक्ट कर देगा. सो हाउ मेनी एरोज follower has in this activity? There are 9 arrows. 9 arrows. Okay, so you can say that if the follower has 9 arrows, the chainage between line A and B is 9. Means the line AB is subdivided into 9 times of a single chain. एक सिंगल चेन जो कि 20 मीटर की थी, उसको अगर आप 9 बार रिपीट कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट एंड ये 9th, जब आप उसको 9 बार रिपीट कर रहे हैं तब जाके आपकी जो लाइन ए बी है वो क्या हो रही है? कवर हो रही है. इट मीन द डिस्टेंस बिटवीन line A and B is your 9 times of chainage, single chainage. And chainage is mean length of chain.
What do you mean by chain? Chain is referred to length of particular chain. So in this case, chainage will be 20 meter and the length between AB is 180 meter. ठीक है? So this is the activity during the chaining process. Okay. Now the main activity is your ranging and chaining. So we classify these obstacles on the basis of chaining and ranging. The first obstacle. Now we are going to discuss types of obstacles. The first obstacle is when your chaining can be happen on ground but difficult to ranging your stations. So this is the problem number 1. Second problem is when ranging is going easy on your natural ground or the area which you have to survey, but the chaining process cannot be done on that area due to some obstacle. And the third type of problem during this process is when chaining and ranging cannot be done on your given land. ठीक है? चेनिंग एंड रेंजिंग दोनों नहीं हो सकती. तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे 3 तरीके के ऑब्स्टिकल्स हैं, ये हमारे 3 तरीके के कैटेगरीज हैं ऑब्स्टिकल की ड्यूरिंग द चेनिंग प्रोसेस. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन on these. The first one, and we will solve this problem with an example. So for the first case where chaining is possible but ranging is not possible, give me an example of any situation. Unlevel ground. What? Unlevel ground. Unleveled ground. Okay, so the answer is quite okay. If you have a raising portion like this, this is your x direction and this is your z direction, means the diagram is in your vertical plane. So this raised portion of ground is act as an obstacle for ranging process. Now you cannot range this B point from your A point. Okay, but the chaining process is okay with the help of like this. You can chain in this direction like this. Okay. For rising portion of ground, we have already covered that indirect ranging. इसमें किसी को डाउट है इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या होता है? We already covered this ranging process with the help of video lecture, so I hope you are clear. Now there is a second example which is in x and y direction, means your plane is horizontal. So this is your forest area. Okay, point A is here, point B is at this distance. Now what is the problem inside this forest? There are big trees. Okay, so it is easy inside this forest for chaining, but you cannot range your B point from A. तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे.
ये फॉरेस्ट है। अब ये फॉरेस्ट जो है, इस फॉरेस्ट में आप चेनिंग प्रोसेस तो कर सकते हो अगर आपको डायरेक्शन दे दी, बट आप चेनिंग प्रोसेस किस डायरेक्शन में करोगे, उसके लिए आपको बी पॉइंट को लोकेट करना जरूरी है। बट बी पॉइंट यहाँ पे क्या है, ये जो ट्रीज है यहाँ पे, इसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप कैसे करोगे इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए रैंडम लाइन लाइक दिस, ठीक है, एंड दिस इज योर C point. We locate this point with ringing rod. Now what you can cite your A point and B point from the C point. ये इस तरीके का पॉइंट है जहां से आपको A भी दिख रहा है और B भी दिख रहा है, क्लियर। और क्योंकि आपने ये AC लाइन ड्रॉ करी है विद द हेल्प ऑफ चेन एंड रिंगिंग प्रोसेस, यू कैन ऑल्सो मेजर द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। आपको AC की डिस्टेंस पता है और आप पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्स्टिकल है वो फॉरेस्ट का ये वाला हिस्सा है, ठीक है, बाकी वाला एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ यू ड्रॉ आप एक ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर इस लाइन से टूवर्ड योर बी पॉइंट। अब ये परपेंडिकुलर आप इस तरीके से ड्रॉ करिए, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जो पॉइंट है, सपोज इस पॉइंट को हम ले लेते हैं पॉइंट नंबर 1। तो ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ये किसी इंटरमीडिएट पॉइंट से ड्रॉ किया होगा, तो उस इंटरमीडिएट पॉइंट्स को हम यहाँ पे ले लेते हैं स्मॉल a, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक सिंपल D पॉइंट ले लेते हैं। तो D पॉइंट से यू हैव ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टूवर्ड लाइन B1, और जहां पे ये पॉइंट मीट किया यहाँ पे आपने इस पॉइंट को दे दिया E। अब क्या करेंगे, आप ED की लेंथ आप पता कर लेंगे, ठीक है, ED की लेंथ आप पता कर सकते हैं। सिमिलरली आप A पॉइंट से एक्सटेंड करेंगे और कोई भी रैंडम लाइन जो आपने AC ड्रॉ करी है, इस रैंडम लाइन पे एक इंटरमीडिएट पॉइंट अगेन ले लेते हैं, और ये इंटरमीडिएट पॉइंट आपका F हो जाएगा, और इस F से आपने फिर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। जहां पे ये परपेंडिकुलर लाइन साइट करेगी लाइन A2 को, उस जगह को हम G पॉइंट कह देते हैं, ठीक। कोई डाउट? नो सर। नहीं है ना, ठीक है। आपको जो कैलकुलेट करना है वो मेजर करना है ए बी की लेंथ मेजर करना है। आपका जो फाइनल एम है, व्हाट इज योर फाइनल एम? टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ओके। नाउ you draw a random line AC। क्या है? AC is your random line। तो AC पे जितने पॉइंट्स हैं वो आपको पता है, ठीक है, वो आप मेजर कर सकते हैं, क्योंकि AC को ड्रॉ करते वक्त कोई भी ऑब्स्टिकल आपको फेस करने को नहीं मिला। तो इसका मतलब आप AF की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, AD की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेनिंग, ठीक है। सिमिलरली DE की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड FG की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये रैंडम लाइन में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है। एंड DE and FG are your perpendicular line from random line, ठीक है, क्लियर, which is intersect on line AB। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको एक चीज ध्यान देखने वाली होगी, स्मॉल ट्रायंगल AFG एंड बिगर ट्रायंगल ADE कुछ सिमिलर सा लग रहा है। क्या सिमिलैरिटी है इसमें? इसमें सिमिलैरिटी है एंगल A जो है वो सेम है, एक परपेंडिकुलर राइट एंगल है,
तो अगर टू एंगल सेम होंगे, जो थर्ड एंगल होगा वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हेन टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम एंगल्स, देन द ट्रायंगल इज नोन एज सिमिलर ट्रायंगल, similar triangles. And what is the property of similar triangles? The ratio of their sides are equal. So from this equation हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे AF जो कि कैलकुलेटेड है अपॉन AD, ये क्या है, रैंडम लाइन से हमें पता है कि नहीं पता है। इसकी वैल्यू इक्वल होगी, चेक करने के लिए हम ले रहे हैं, हमें इसकी जो वैल्यू निकली वो वैल्यू इक्वल निकलनी चाहिए हमारी FG के बराबर अपॉन DE के बराबर। तो ये हमने फर्स्ट चेक करा, अगर ये सही है, if these equation is valid, then we compare the value of this equation with our AG to your AE. Okay, AG you can calculate easily because between the A and G there is no obstacle, but AE, between A point and E point there is an obstacle which is given in the form of forest. Okay, so from this valid equation you will find the length of AG. Okay, now what is your AB? AB is your summation of AE plus EB. क्लियर? Yes, sir. तो ये आपका फर्स्ट ऑब्स्टिकल था जिसमें हमें रेंजिंग की प्रॉब्लम है बट चेनिंग की प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट है जहां पे आप रेंज कर सकते हो लेकिन चेनिंग नहीं कर सकते हो। कंडीशन नंबर 2, इसके लिए एग्जांपल लीजिए आप। एग्जांपल हम किसका ले लेते हैं, पॉन्ड का ले लेते हैं। पॉन्ड में आप जा नहीं सकते हो, चेनिंग प्रोसेस नहीं कर सकते, बट फ्रॉम ए पॉइंट यू कैन साइट योर बी पॉइंट। बी पॉइंट आप देख सकते हो ना ए पॉइंट से, तो इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, वी हैव सम मेथड्स। हम यहाँ पे रेंजिंग रैंडम मेथड भी यूज कर सकते, रैंडम लाइन मेथड भी यूज कर सकते, जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। बट हम यहाँ पे थोड़ा और एक दूसरा मेथड यूज करते हैं। जब हम साइट कर सकते हैं तो हम ये इस तरीके से ये पॉइंट्स तो लोकेट कर ही सकते हैं, जैसे कि एक ये पॉइंट हो गया इंटरमीडिएट और एक ये पॉइंट हो गया जिसको हमने C एंड D का, ये तो हम लोकेट कर ही सकते हैं ना CD। Yes, sir. ठीक है, तो ये पॉइंट जब हम लोकेट कर सकते हैं तो इस पॉइंट से फिर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। E पॉइंट, और इसकी हमें लेंथ कैलकुलेट करना है। सपोज द लेंथ ऑफ CE इज L मीटर। ओके, सिमिलरली ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम D पॉइंट हैविंग द लेंथ ऑफ L मीटर। तो जब आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेम लेंथ का, तो जो ये E एंड F पॉइंट होंगे वो उनके द्वारा जो लाइन खींची जाएगी, द लाइन ड्रॉन बिटवीन द EF इज पैरेलल टू योर लाइन CD। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ये जो लाइन होगी पैरेलल होगी, ये जो लाइन जा रही है यहाँ से CD, ठीक है। इज इट ओके और नॉट? Yes, sir. So you can calculate the length of EF with the help of chain। तो ये मान लीजिए आप इसको आप कोई लेंथ ले लीजिए, जैसे सपोज इसको हम कुछ यूनिट ले लेते हैं, यू मीटर यूनिट ले लेते हैं, ठीक है। यू से हमने इसे डिनोट कर दिया, यू वेरिएबल से हमने इसे शो करा। सो AB की लेंथ यहाँ पे क्लियरली क्या हो जाएगी, AC प्लस EF प्लस DB, ठीक है। ये वाला जो लेंथ है ये आप मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन, बिकॉज देयर इज नो ऑब्स्टिकल बिटवीन दीज पॉइंट्स। एंड
The obstacle lies between CD line, which is parallel to EF line, and EF line can be measured in the form of U variable. Clear? Yes, sir. Okay. Now we have another example inside this problem, which is related to a river. So this is your river. Now you cannot apply the parallel. अब यहाँ पे आप ये जो फर्स्ट वाला मेथड है इसे अप्लाई नहीं कर सकते रिवर में. The method which is used for solving this question, particularly related to pond or lake, is not related to a river. Why? Because it is continuous in horizontal direction. That's why we are not use this method. So first you have to draw your points like A and B. तो यहाँ पे A B पे हम क्या रख देंगे, पोल मतलब रेंजिंग रॉड को शो कर देंगे. ठीक है, तो ये ए बी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हो. साइड रेंज तो कर ही सकते हो ना आप इस तरीके से. ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2. So you can cite your points like this, but you cannot measure the distance between 1 and 2 with the help of chain. तो आप चेन से फर्स्ट और 2 के बीच की डिस्टेंस नहीं मेजर कर सकते. और अगर आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगी तो आपको ए और बी का मेजरमेंट मिल जाएगा, जो कि हमारा अल्टीमेट एम है. कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, एनी आइडिया? कोई आइडिया आपके पास इसका? तो जो एक फर्स्ट पॉइंट है, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, और उस परपेंडिकुलर क्योंकि वो अलोंग द लेंथ है तो वो हम उसको नोट ले लेते हैं, उस पॉइंट को बी पॉइंट ले लेते हैं. और ये 1 से बी की डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन. नाउ ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम बी पॉइंट टू योर, sorry, this is not B point, this is your D point, क्योंकि B हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. D एंड E. ठीक है, तो अब आपने क्या करा है, रिवर के वन साइड एक बैंक पे ही एक तरफ आपने क्या करा है, इस तरीके का कुछ रेक्टेंगुलर बनाने की कोशिश करी है. ठीक है, दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने यहां से ड्रॉ करी. क्लियर है आपको ये? अब इससे क्या करना है, E से 2 को साइड करना है. E से 2 को साइड करना है, और ये जो पॉइंट है यहाँ को आपको इसको मार्क करना है विद पॉइंट F. क्लियर? अब आप क्या करेंगे, आपके पास ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस भी पता है, ये वाले डिस्टेंस भी आप मेजर कर सकते हैं, और ये वाले डिस्टेंस भी आप मेजर कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी ट्रबल, बिकॉज देयर इज नो ऑब्स्टिकल बिटवीन दीज पॉइंट. सो अब देखिए 2 से 1 की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे. 2 से 1 की डिस्टेंस निकालने के लिए हम ट्रायंगल को रीड करेंगे. तो फर्स्ट ट्रायंगल इज योर triangle 1 2 F. The second triangle is your FDE. Clear? तो ये जो दोनों ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल अगेन आर द सिमिलर ट्रायंगल. व्हाई? बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल 90 डिग्री and the third angle is also equal. Okay, so on the basis of this we have to find 1 2 divided by DE, which is already calculated, is equal to 1F
divided by FD. Okay, this is a property of similar triangle. In this case, this is your unknown value. All other value like 1F, FD, DE are calculated earlier with the help of chain. तो ये एक फर्स्ट स्टेप था. दूसरा तरीका जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो क्या होगा, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट को ड्रॉ करिए एज यूजुअल. रेंजिंग रॉड प्रोवाइड कर दीजिए दोनों पॉइंट्स पे और उसके बाद इसको 2 पॉइंट तक एक्सटेंड करिए, इसको 1 पॉइंट तक एक्सटेंड करिए. फिर अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब आपने जो ये 1 पॉइंट यहाँ पे लिया है, यहां से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. ठीक है, इस तरीके से. और 1C point तक. So you have to draw a perpendicular 1C on line 1B. Now range this C point with the help of 2 points like this. रेंज करना इजी है क्योंकि आप यहाँ पे एक now extend and again provide this point with the help of ranging rod is your D point. ठीक है, अब D point से आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर 1B पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइनली क्या मिला, यहाँ पे आपने E एंड F, तो ये इस तरीके से आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा. तो देखिए कौन कौन से ट्रायंगल अब सिमिलर है. एक तो ये वाला ट्रायंगल विच इज ट्रायंगल 1, 2 एंड C आर द बिगर ट्रायंगल. स्मॉलर ट्रायंगल कौन सा है, F, D एंड C. ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर है. तो अल्टीमेट एम हमारा क्या है, वी हैव टू फाइंड आवर डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 डिवाइडेड बाय F एंड C. FC की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, वो E1 की डिस्टेंस के बराबर है. E1 कहाँ पे है, E1 ये वाली वैल्यू है. ठीक है, which is equal to 1C divided by FD. अब 1C तो आप मेजर कर सकते हो क्योंकि आपने खुद ही ड्रॉ किया है ये वाला, इसको तो आप खुद मेजर कर सकते हो चेन से क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल नहीं है. तो 1C आपने ड्रॉ किया. FD कैसे निकलेगा, FD निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ED माइनस 1C करना पड़ेगा. क्लियर, बड़ी लाइन जो आपने परपेंडिकुलर करी है उसमें से अगर आप छोटी लाइन को माइनस करेंगे उसकी मेजरमेंट को, तो क्या निकलेगा आपका, FD निकल जाएगा. या फिर आप सिंपली चेंज प्रोसेस से FD भी डायरेक्टली कर सकते हैं. सो दिस इज द सेकंड मेथड. ओके, तो यह हमारा सेकंड कैटेगरी का ऑब्स्टिकल था जिसको हमने इस दो तरीके से सॉल्व किया. ठीक है, लास्ट जो है हमारा, लास्ट वन इज रिलेटेड टू योर when there is no chaining and no ranging. Can you give me an example related to this problem? बताइए, ऐसा कोई एग्जांपल बताइए जहां पे आप चेनिंग भी नहीं पॉसिबल कर पा रहे हैं और देख भी नहीं पा रहे हैं अपने बी पॉइंट को. तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं या ऑब्स्टिकल बना देंगे. तो वो ऑब्स्टिकल क्या होगा, मेरा क्वेश्चन ये है. सपोज दिस इज योर ऑब्स्टिकल लाइक दिस और एनी शेप
and this is your B point, or the A point, this is, and this is your B point. Now what is the problem? The problem, you cannot see this B point from A point, and the chaining process is not also possible due to this obstacle. Now what is this obstacle? ये कैसा ऑब्स्टिकल होगा जिसकी वजह से चेनिंग और रेंजिंग दोनों नहीं हो पा रही? सर माउंटेन्स में माउंटेन्स में वाटर बॉडीज भी हो गया सर, अंडुलेशन भी होगा। देखिए, वाटर बॉडीज इज रिलेटेड टू योर पॉन्ड एंड रिवर, वो हम कवर कर चुके हैं. माउंटेन्स इज रिलेटेड टू योर राइजिंग पोर्शन ऑफ सर इसमें ग्राउंड, अंडुलेशन भी होगा। वी ऑल्सो कवर दिस. द माउंटेन्स, ग्राउंड का ऊपर जाना, राइजिंग पोर्शन होना ग्राउंड का, वो हम कवर कर चुके हैं. ग्राउंड का नीचे जाना यानी कि पॉन्ड और लेक का बनना, वो हम कवर कर चुके हैं. अब यहाँ पे ये कैसा होगा? ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसको हम एक्सेस नहीं कर पा रहे, ठीक है. और ये एक्सेस नहीं कर पा रहे मतलब लाइक बिल्डिंग, ठीक है. बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग आपकी सर्कुलर बिल्डिंग, जैसे आपकी कॉलेज की बिल्डिंग है वैसी एक सर्कुलर बिल्डिंग है. तो आप क्या बिल्डिंग के ऊपर या उसको उसके अंदर से चेनिंग प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं? नो सर। और सिमिलरली आप उसमें रेंजिंग प्रोसेस भी नहीं कर सकते हैं. तो इस केसेस के लिए हम क्या करते हैं? इन केसेस के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमें क्या करना है? हमें इंटरमीडिएट पॉइंट को ड्रॉ करना है 2, ठीक है. The first intermediate point is D. Now range A point from D point and draw a C point, which is distance x. Okay. Now draw a perpendicular from the both point with x distance. ठीक है, और नेम दे दीजिए उनका. सपोज दिस इज C1 एंड दिस इज D1. क्लियर? 2 करे ना आपने ये पॉइंट ऐसे करके. अब C1 से आपने रेंज करना है D1 को, और क्या करना है? एक इस तरीके से कोई रेंजिंग रॉड फिक्स कर देनी है. कहीं पे भी आप इसको, रेंजिंग रॉड को मैं यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है. क्लियर? नाउ अब आपने क्या करना है? ये क्या हुआ? ये क्यों आपने 2 पॉइंट्स लिए थे? कोई मुझे बता सकता है? ये 2 पॉइंट्स हमने इसलिए लिए हैं ताकि हम ये जो रेस बना रहे हैं, ये वाली जो रेस बना रहे हैं C1 से D1 वाली, वो स्ट्रेट हो सके. अगर हम एक सिंगल पॉइंट लेते तो हम ये रेस कैसे बना पाते? तो हम ये रेंज कर ही नहीं पाते ना, ठीक है. आप जो प्रीवियस जो मेथड है उन सबको अप्लाई कर सकते हो. जैसे रैंडम लाइन वाला मेथड यूज कर सकते हो, पॉन्ड के केस में जो हुआ था उसको यूज कर सकते हो. ये मैं आपको तीसरा तरीका बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो. कि पहले आपने एक डी पॉइंट को ड्रॉ किया, डी पॉइंट से सी पॉइंट क्या किया? रेंज किया. तो सी पॉइंट को आपने रेंजिंग रॉड से लोकेट किया. अब सी एंड डी से आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि इक्वल डिस्टेंस है x के बराबर, उसको ड्रॉ किया, which is C1 and D1. Now from C1 point you range your D1 station and extend this station in the direction of your final point. Take another 2 intermediate points, which is your E1 and F1 at a distance of x. वही x जो आपने पहले ले रखा है. Now provide perpendicular of x distance. Again x distance का perpendicular provide किया, और जहां पे ये खत्म हुआ वो आपका E point और F point हुआ. Now join E point and F point and sight to your B point. Is it clear to you or not? ये आपकी x distance अगर निकल रही है, कौन सी? ये. इसका मतलब आपने ये perpendicular प्रॉपर किए हुए हैं,
ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली यू हैव टू मेजर दिस डिस्टेंस L1 x1, फिर L2 x यहाँ से हो गया, फिर L3. Okay, now what is the value of AB? The AB line is divided into AC plus CD plus DE plus EF plus FB. Okay, AC value, what is the value of AC is L1, we already covered, plus CD value is X, plus DE, D is parallel to line, your DE line is parallel to D1 E1 line. The value of D1 or E1 is equal to L2, so DE is equal to L2 plus EF. EF is your X distance plus FB is your L3 distance. तो आपने क्या क्या किया यहाँ पे, सिमिलर, मतलब आपने सिर्फ ये वैल्यूज को चेनिंग प्रोसेस से कैलकुलेट किया. ओके, so this is the third step. Okay, so this is the completion of today's lecture, which is related to obstacle in chaining process. I hope you like this. Thank you.